children. Good morning to everyone once again. Respected parents, lovely children, teachers, and our chief guest today, Mr. Pandeyji, Manager, IR, Personal Department, Headquarter, Singrauli, and his better half, Anshupriya Pandeyji, who is working as a teacher in Dairy Khadia. Children, it's a very lucky day for us to have amidst us Pani Pankaj Pandeyji. We have been talking about him in our previous assemblies, and we are fortunate that he could spare his time and be with us today. As already told by N.P. Mishra sir in his introduction, that Pani Pankaj ji is working successfully as Manager, Personal Department of Northern Coalfields Limited, Singrauli. And along with that, he is one of the best comparers I've ever come across. He is able to compare in Hindi, he is able to compare in English, and I'm sure many of you must have had the opportunity to listen to him. And those who had not listened to him will get the opportunity to listen to him today. Along with being best comparer, he possesses one of the most difficult skills. He has command over one of the most difficult skills in language, that is of writing. We can speak, we can read, we can listen, but then when it comes to writing, it really needs talent. And he has penned down Bal Ramayana. So for that, you all need to give him a big round of applause. Thank you, Pankaj, for all that you have done for the coming generation. I'm sure students will get inspired to see you in your youth following the spiritual path. Otherwise, one has the wrong impression that we'll go into spiritual path when we'll become old, when we'll become retired. But if you don't practice it when you are young, it will not be possible for you to take on when you are old. We have various examples in our history, like Prahlad, like Dhruv, like Harkrishan Sahib, the 8th Sikh Guru. They all became spiritual leaders when they were hardly 5 years old, 6 years old. So it's a wrong concept to say that when we will become old, we'll get into spiritualism. Spiritualism will enlighten your lives and will make you good human beings. All of you want to become good human beings? Yes. So let us now look forward to what Pani Pankaj Pandeyji has to say to all of us. I welcome him. Please welcome him with again a round of applause. A very warm good morning to one and all. Reverend Principal, respected Thapa sir, Reverend teachers of the school, respected parents, I can see a few of them sitting here, and my lovely children, good morning. Also say good morning. Thank you. At the outset, I would like to express my sincere and heartfelt thanks to respected Principal Sir for having me this opportunity to be amongst you this fine morning. Being at a school, sir, is always a feeling of nostalgia for me, and I think it would be for
everyone else as well. क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, इट्स नॉट मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं शायद स्कूल छोड़े मुझे इतने दिन हो गए, 2005 बैच का पास आउट हूँ मैं डिकोस टू विनर से, और मुझे कभी नहीं लगता कि इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। जब भी स्कूल में आता हूँ, स्पेशली विद द ड्रम बीट्स जो इनिशियली बज रही थी, जिस पे आप कदम ताल कर रहे थे, एंड उसके बाद जो प्रेयर्स हुई, तो आई कुड नॉट इमेजिन माई सेल्फ सिटिंग हियर, आई कुड फील माई सेल्फ being there somewhere in the middle of you students. So thank you so much, sir. It's a wonderful feeling, actually cannot be expressed in words. I fall short of words when I come to school, and this has been my fortune that I have been to this school many a times before as well. पहले भी जब मैं निगाही में initially posted था, तो I used to come to school. उसके बाद जब मैं हेडक्वार्टर में रहा, खड़िया में रहा, स्कूल से मेरा जुड़ाव हमेशा रहा, क्योंकि दिस इज समथिंग, ये ऐसी फुलवारी है जहाँ पे रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि टीचर्स आर द मोस्ट फॉर्चुनेट वंस। आप सबसे खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी एनर्जेटिक मॉर्निंग की किक स्टार्ट मिलती है, इतना अच्छी प्रेयर के साथ, इतनी एनर्जी के साथ बच्चे कदम ताल करते हैं, प्रेयर गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, देश प्रेम के कई गीत आज के इस असेंबली में हुए। और मुझे लगता है कि ये संस्कार जो आप बच्चों में डाल रहे हैं, ये शायद इन बच्चों के साथ जीवन पर्यंत रहेगा। कुछ क्लास की, कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन द सीड दैट इज बीइंग सोन हियर, आज जो आप लोग इनके मनोमस्तिष्क में जो बीजारोपण कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति, प्रेम के प्रति, धर्म के प्रति, संस्थान के प्रति, वो इनके साथ जीवन पर्यंत चलेगा। और सच मानिए, जैसा प्रिंसिपल सर ने कहा कि तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती। जिस बच्चे में तेज है, जिसके अंदर सीखने की ललक है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। तो नेवर फील योरसेल्फ कि मैं अभी छोटा हूं या मैं अभी बड़ा हो चुका हूं। अगर आप में सीखने की ललक है, जब तक आप में सीखने की ललक है, तब तक आप बड़े बनते रहते हैं। और जिस दिन सीखने की चाह, सीखने की ललक खत्म हो जाती है, उस दिन से व्यक्ति जो है छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जब तक आपके अंदर सीखने की चाह है, आप बड़े हैं, और सीखने की चाह खत्म हुई, उससे हम छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी एक ही प्रार्थना है आप सभी से कि एक ऐसे विद्यालय परिसर में जहां आप खड़े हैं, आप जैसे खुशकिस्मत हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं जो इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतने अच्छे विद्यालय में, इतने अच्छे गुरुजनों के बीच, और विशेषकर इतने अच्छे प्रिंसिपल साहब के देख रेख में, इनके गाइडेंस में ये विद्यालय संचालित हो रहा है, जहां न सिर्फ विषय का ज्ञान दिया जाता है, बल्कि आपके अंदर संस्कारों का बीज रोपित किया जाता है। तो आप सब मानिए, आप खुशकिस्मत हैं। और अगर इस फुलवारी से आप अगर खिल करके एक मुस्कुराता हुआ फूल बन करके हिंदुस्तान को अगर नहीं महकाते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अपने पक्ष से रह जाती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों, आप सभी इन सारी सुविधाओं का, ये सारी अपॉर्चुनिटीज दैट द गॉड हैज गिवन अस, इन सारी सुविधाओं का पूरा उपयोग करेंगे और अपने आप को हिंदुस्तान के बगिया का वह लहलहाता और फूल बनाएंगे, वह खुशनुमा फूल बनाएंगे, जिनसे मिल करके आपकी सुगंध औरों तक भी पहुंचेगी और पूरा हिंदुस्तान इस खुशबू से महकेगा। बनेंगे? बनेंगे? आई नीड अ लाउड यस। थैंक यू सो मच। और यही सीखने की चाह है, दूसरों को देने की चाह है, जो व्यक्ति को राम बनाती है। मैंने बाल रामायण नाम की जो पुस्तक लिखी है, जिसके बारे में सर ने बताया और आशीर्वाद भी मुझे दिया है, मैंने सर की पुस्तक पूर्व में भी भेंट की है, सर ने उसका अध्ययन भी किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज बच्चों ने उसे गाया भी। राम अगर चाहते तो राजा बन सकते थे, बन सकते थे। You must all be knowing the story of Ramayana. Ramayana is nothing to have with religion. पहली बात तो इसको आप लोग अपने मन से निकाल दें। रामायण कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, इसे इसका किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं है। रामायण इज क्या है? जीवन ग्रंथ है, एक लाइफ बुक है। अगर अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में जीना चाहते हैं तो हम किसी भी सदग्रंथ को उठा लीजिए, आप किसी भी रामायण को उठा लीजिए, महाभारत को उठा लीजिए, गीता जी को उठा लीजिए, या गुरु नानक देव जी के
गुरुग्रंथ साहिब को उठा लीजिए, कुरान को उठा लीजिए, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं हमें। तो राम यदि चाहते तो राजा बन सकते थे, अग्रीड? राम के बन जाने को किसी ने बोला क्या? नेवर। अगर कोई कहता है कि उनकी माँ ने उनको बन जाने को बोला, इनके पिता ने बोला, तो पूरी श्री रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, कहीं भी नहीं बोला। और राम यदि चाहते तो राजा बन जाते, कोई रोकने वाला नहीं था। उनके पिताजी ने एक भी अक्षर नहीं कहा कि राम तुम वन को जाओ, और ना ही माता कैकेयी ने एक भी अक्षर कहा कि राम तुम वन को जाओ। माता कैकेयी ने राम से सिर्फ ये कहा कि मैंने अपने पति महाराज दशरथ से अपने 2 वचन मांगे हैं, जिनमें पहला वचन है तुम्हारा वन गमन और दूसरा वचन है भरत का राज्याभिषेक। उन्होंने राम जी से अपने मन की बात बताई जो उन्होंने अपने पति महाराज दशरथ से मांगी थी। वन जाने को राम को आज्ञा नहीं दी। हम कहते हैं ना कि राम अपने माता पिता की आज्ञा मान के वन को चले गए, जी नहीं, राम अपने माता पिता की आज्ञा मान के वन को नहीं गए। राम अपने माता की मन की बात को जान के वन को चले गए। ये विशेषता है राम की। आज्ञा मानना तो बहुत लोग आज्ञा मानते हैं, राम की विशेषता ये है कि वे अपने पिता की वचनबद्धता को जानते हैं कि मेरे पिताजी ने वचन दिया है और मेरी मां की ऐसी इच्छा है। मां ने कहा नहीं, बच्चों प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, मां ने कहा नहीं, मां के मन की इच्छा को जान के जो व्यक्ति वन को चला जाए वो राम है। और मां बाप को यदि कहना पड़ जाए तो वो राम नहीं बन सकता। यानी हम एज ए स्टूडेंट या हम बच्चों की तरह एज ए सन और ए डॉटर, व्हाट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, व्हाट वी नीड टू बियर इट इज कि हमारे माँ बाप को कुछ कहना ना पड़े, हमारे गुरुजनों को कहना ना पड़े। अगर हमें उनके मन की बात, अगर हमें उनके मन की ख्वाहिश पता भी चल जाए कि मेरे पिताजी मेरी माता ये चाहते हैं, मुझसे ये अपेक्षा करते हैं, तो बिना उनके कहे ही वो काम को कर देना व्यक्ति को राम बना देता है। मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जाने। यानी माता पिता और गुरु, ये जीवन में ऐसे 3 स्तंभ हैं जिनकी बात पर विचार ही नहीं करना चाहिए। यानी वे जो कहते हैं अक्षरशः बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना उसको, विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट, वी नीड टू ओबे इट, और तब हम राम बन सकते हैं। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। राम चाहते तो राज्याभिषेक करा के राजा बन सकते, बन जाते ना, लेकिन इतिहास के कितने राजाओं का नाम आपको याद है, आप जरा बता दो। और कितने राजा आज मंदिर में उनकी पूजा की जाती है क्या कोई? नहीं। There is no king that whom we worship. Is there anyone? कोई राजा है क्या जिसकी पूजा करते हैं मंदिरों में बैठा के, अपने घर घर में जिसके मंदिर हो? नहीं। लेकिन चूंकि राम ने अपने माता पिता के मन की इच्छा को जान करके वन को प्रस्थान किया, वन में गए, उन्होंने राज्य की अपेक्षा वन के संघर्ष को चुना। और राम जब वन गए तो किस उम्र के थे? ठीक वही आई जो हमारे बीच बालकनी में ऊपर में कॉरिडोर में खड़ी है। तो आपके लिए विशेष संदेश है कि जब आप आपकी उम्र के हैं, तो अगर आपको राज्य सत्ता मिल भी रही हो, अगर आपको सुख सुविधाएं भोग विलास मिल भी रहे हो, तो त्याग करिए उसका, और त्याग करके संघर्ष की राह को चुनिए, यानी वन गमन को चुनिए। वन जाने का मतलब वनवास को निकल जाना नहीं है। वन जाने का मतलब है संघर्ष का चुनाव करना। हम अगर हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हैं भी, अगर हमारे माता पिता दे भी रहे हैं, तो भी हमें उसका त्याग करके वनवास यानी निर्वसन को चले जाना चाहिए। यानी हमें सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए, संघर्ष की राह को चुनना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए। और जब हम तपाते हैं खुद को, तो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आते हैं। राम तो हम में से हर किसी में है। Everybody is gifted with that God consciousness, है ना? हम सबके अंदर में आत्मा है, ईश्वर का अंश है। राम तो हम सभी हैं, लेकिन राम पूजित नहीं है। राम की पूजा नहीं होती, पूजा होती है उस राम की जो माता पिता के मन की इच्छा को जान करके इस युवावस्था में, इस जवानी में सिंहासन के सुख को त्याग करके वन को जाते हैं, अपने जीवन को तपाते हैं, अपने साथ साथ वानर भीमनी
जो वंचित जाति प्रजाति के लोग हैं, जो हमसे कम खुशकिस्मत लोग हैं, उनको अपने साथ लेते हैं, उनको सुदृढ़ करते हैं, उनको मजबूत करते हैं, उनके साथ संघर्ष करते हैं, न्याय की स्थापना करते हैं, और न्याय की स्थापना के बाद जब पुनः वापस आते हैं तो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आते हैं, और उस राम की पूजा करते हैं हम, न कि दशरथ नंदन राम की। तो मेरी विनती है आप सभी से, मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि इस उम्र में, इस अवस्था में आप सभी अपने आप को तपाएं। कलाम साहब को आप सभी जानते हैं। राम को यदि आप कोई धार्मिक पुरुष मान भी लें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, यद्यपि हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म विशेष से ताल्लुक रखेगा, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष तो मनुष्य जाति के, ना हिंदू इस्लाम के अनुयायी, वे मनुष्य धर्म के, ना गीता ना कुरान के। बात यही जो समझ सको तो समझो, एक विधाता है और हर रिश्ते से बड़ा है मानव, मनुज मनुज का नाता है। महापुरुष होते हैं, गुरु नानक देव जी हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हों, स्वामी विवेकानंद हों, ये महापुरुष किसी वर्ग विशेष के, किसी जाति विशेष के, किसी धर्म विशेष के नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के हैं। ये संपूर्ण मानव जाति के लोग हैं। तो इनसे यदि हमें कुछ ग्रहण करने को मिलता है तो यही कि हम सबसे पहले चंद्रयान पर खोज के लिए तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आवश्यकता है जो हमारे अंदर राम है, जो हमारे अंदर कृष्ण है, जो हमारे अंदर नानक जी हैं, उनको हम पहचाने, जाने, आत्मावलोकन करें, अपना विश्लेषण करें, अपनी मजबूतियों को जानें, हमें क्या ग्राह्य लेना है, क्या सीखना है और क्या छोड़ना है, इस बात को सीखें और अपने आप को इतना तपाइए कि कनक जैसा, सोने के जैसा दमकता हुआ आप फिर पूरे अपनी रोशनी से संसार को भी रोशन कर सकें। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है कि बचपन में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके भैया भरत, विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रसंग है इसलिए मैं यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ कि छोटे में सबसे पहली गुरु कौन होती है बच्चों की? माँ। और राम जी को माता कैकेयी सबसे अधिक प्रिय थी क्योंकि उनकी गुरु भी थी। माता कौशल्या ने उन्हें जन्म जरूर दिया, लेकिन माता कैकेयी जिनके ऊपर हमें कहते हैं कि उन्होंने निर्वसन, उनको वनवास भेज दिया, वो उनकी सबसे प्रिय माता थी और उनकी गुरु भी थी। तो बचपन में जब धनुर्विद्या सिखा रही थी माता कैकेयी भैया राम को और भैया भरत को, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिए। तो भरत जी को सबसे पहले धनुष बाण पकड़ाती हैं और एक पक्षी को, एक डाल पर एक पक्षी को दिखाती हैं माता कैकेयी और भरत को बोलती हैं कि भरत, आज मैं तुम्हारे, जो मैंने आज तक तुम्हें सिखाया है धनुर्विद्या, मैं उसकी प्रामाणिकता देखना चाहती हूं कि तुम कितने निपुण हो गए हो। कहते हैं जी माता आज्ञा करें। वो बोलती है, वो देखो डाल पर एक पक्षी दिख रहा है, ये वो धनुष बाण, और बाण की प्रत्यंचा को खींचो और उस पक्षी को का भेदन करो। भैया भरत धनुष बाण उठाते हैं, प्रत्यंचा को कानों तक खींचते हैं, पक्षी की तरफ देखते हैं और उनके अंदर करुणा जाग जाती है। करुणा यानी दया, प्रेम, कि अनायास मैं सिर्फ और सिर्फ अपने धनुर्विद्या का की प्रामाणिकता को देने के लिए, उसकी निपुणता को पुष्ट करने के लिए एक निर्दोष जीव की हत्या कर दूं, मैं ऐसी परीक्षा नहीं देना चाहता। वो धनुष बाण रख देते हैं, माता के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं मां मुझे क्षमा करना, मैं सिर्फ और सिर्फ धनुर्विद्या की पुष्टता सिद्ध करने के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए मुझसे ये नहीं होगा। माता कैकेयी मुस्कुराती हैं, उन्हें पीछे हटाती है, राम को आगे खड़ा करती हैं, कहती है राम, मैं तुम्हारी धनुर्विद्या की पुष्टता देखना चाहती हूँ, ये लो धनुष बाण, वो डाल पर पक्षी बैठा है, प्रत्यंचा को खींचो और उस पक्षी का भेदन करो। राम जी धनुष बाण उठाते हैं, प्रत्यंचा को कानों तक खींचते हैं और क्या करते हैं? बाण छोड़ते हैं, पक्षी को भेद कर नीचे गिरा देते हैं। बताइए सही किया या गलत? मैं जो अगला वाक्य बोलूंगा उसके बाद बताइएगा सही किया या गलत। यहां तक सुनेंगे तो बिल्कुल गलत। राम धनुष बाण उठाते हैं, प्रत्यंचा को कानों तक खींचते हैं, पक्षी का भेदन करते हैं, पक्षी जमीन पर गिर जाता है। माता कैकेयी भरत और राम दोनों को लेकर के उस पक्षी के पास पहुंचती हैं और भरत को कहती है, भरत पक्षी को उठाओ। भरत जैसे ही पक्षी को उठाते हैं, हथप्रभ होता है, वो पक्षी एक मिट्टी का पक्षी होता है, उसमें जीव नहीं था।
भरत माँ के चरणों में पुनः विनती करते हैं, विलाप करते हैं कि माँ मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मिट्टी का पक्षी है, वरना मैं भी बेधन कर देता। माता कैकेयी वही समझाती है, क्या कहती है, सीख के बाद आपसे पूछूंगा सही किया या गलत। माता कैकेयी समझाती है, कहती है राम और भरत मैंने दोनों को एक ही आज्ञा दी। भरत ने मां की आज्ञा में अपना दिमाग लगाया, अपनी प्रज्ञा का उपयोग किया और उन्होंने वेदन नहीं किया, उन्होंने कहा मैं हत्या नहीं कर सकता। और राम ने माता की आज्ञा पा करके माता की आज्ञा के सामने अपनी प्रज्ञा को शून्य कर दिया कि अगर मेरी माँ ने कोई आज्ञा दी है तो गलत आज्ञा हो ही नहीं सकती, मेरी माँ मुझे हत्या करना सिखा ही नहीं सकती, मेरे गुरु मुझे हत्या करना वध करना सिखा ही नहीं सकते, उनकी आज्ञा सदैव न्यायोचित आज्ञा होगी। इसीलिए राम प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हैं, खींचते हैं और उसका भेदन कर देते हैं। पक्षी मिट्टी का होता है। बताइए किसने सही किया, राम ने या भरत ने? राम ने सही किया ना? जी हाँ। हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा गुरु है, जो हमारी माँ है, जो हमारा पिता है, वो हमें कभी अधर्म युक्त आज्ञा दे ही नहीं सकता। उनकी हर आज्ञा न्याय संगत होगी, उनकी हर आज्ञा धर्म युक्त होगी। इसीलिए कहा गया है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा में प्रज्ञा का उपयोग करना ही नहीं। लेकिन मेरी विनती यहाँ पर थोड़ी सी यह भी है कि हम गुरुजनों को, हम माताओं को, हम पिता को, हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि सदैव हम अपने बच्चों को नीति न्याय और धर्म के रास्ते पर प्रशस्त करें। हमारी जो भी आज्ञा हो, हम उन्हें कोई भी आज्ञा देने से पहले, क्योंकि अगर हम राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र चाहते हैं तो हम भी दशरथ जैसा, कैकेयी जैसा, कौशल्या जैसा माता या पिता बने कि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ न्याय संगत आदेश दें, न्याय संगत उनको ज्ञान देवें, ताकि हमारे बच्चे बिना विचारे हमारे कहे हुए पर चलें और राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। बच्चों, मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं और ये छोटी छोटी बातें जो आपके लिए शायद जीवन पर्यंत लाभकारी रहेंगी। अगर आप इन रास्तों में से, इन गुणों में से, राम के अनेक स्वाभाविक गुण है, अगर उनमें से कुछ एक गुणों को भी अगर आप अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेते हैं, अगर अपने अंदर ला लेते हैं, तो निस्संदेह विश्वास मानिए आपका जीवन इतना खूबसूरत होगा, इतना सफलतापूर्ण होगा कि जीवन की विभत्स से विभत्स जो मुश्किलें होंगी, जो कठिन से कठिन परिस्थितियां होंगी, वो भी आपको डिगा नहीं सकेंगी। क्योंकि लक्ष्य भला किसने है पाया, बाधा रहित महान जी, कौन भला जग में है पाया, बिन मेहनत परिणाम जी, बाधाएं हमको सिखलाती, देती अनुभव ज्ञान जी, और सबको डट कर सहते जाओ, कहते जय सिया राम। जो बच्चों ने पंक्तियां यहाँ पर गाई, बहुत ही सुंदर गायन था उनका, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन था। अगेन सर, मैं गर्वत आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि और जो भी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चों जिन्होंने गाया, सुंदरकांड की पंक्तियां ऐसी हैं कि उसमें कुछ भी राम हनुमान से इतर भी देखिएगा ना। मेरी एकदम इच्छा नहीं है कि आप राम को और रामायण की पूजा करें, मेरी इच्छा है कि आप राम को आत्मसात करें, रामायण को अपने अंदर लिखाएं। पूजा करने का विषय नहीं है, मंदिरों में भगवान को कैद कर देने से और पूजा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनेगा। श्रेष्ठ बनेगा जब हम उनके गुणों को आत्मसात करेंगे। तो सुंदरकांड की जो पंक्तियां हैं वो जीवन में सफलता कैसे पाए इसकी पंक्तियां हैं। आप पहली लाइन से पढ़ना शुरू करिएगा, जो बच्चों ने गाया, सुनकर बातें जामवंत की प्रमुदित हो हनुमान जी, और सबको शीश नवा कहते हैं सादर जय। सुनकर बातें जामवंत की प्रमुदित हो हनुमान जी, सबको शीश नवा कहते हैं सादर जय सिया राम जी। पहला सूत्र है सफलता का। ये मैं बच्चों तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूँ, बाल रामायण इसलिए इसका नाम है कि बच्चे पढ़े, इसमें सफलता के सूत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। पहला सूत्र सफलता का क्या है? हनुमान जी कैसे चलते हैं जब किसी लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? प्रमुदित हो, यानी प्रसन्नता पूर्वक। जब भी आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़े, जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें, तो जिस लक्ष्य से आपका मन प्रसन्न हो, जो हमारे पिताजी हम पे थोप दे, जो हमारे गुरु जी हम पे थोप दे, वो लक्ष्य हमें कभी भी बड़ा नहीं बना सकता।
लक्ष्य, टारगेट, जो भी जीवन के गोल, लाइफ गोल जो भी आप सेटल करें, जो भी आप चयनित करें, वो कौन से हो जो हमें प्रबोधित करें। और जब हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े तो पहला सफलता का सूत्र है कि प्रसन्नता से किया गया कार्य ही सिद्ध होगा। अगर आप मुंह फुला के आधे मन से काम शुरू करने जाइएगा तो पूरा नहीं होगा, पूर्ण फल नहीं देगा। इसलिए सुनकर बातें जामवंत की प्रमुदित हो हनुमान जी, सबको शीश नवा कहते हैं सागर जय सिया राम जी। पहला सूत्र प्रसन्न मन से करिए। दूसरा, सिंधु किनारे चढ़े पहाड़े, है ना, पहाड़ पे चढ़ करके क्या करते हैं हनुमान जी, जय श्री राम का उद्घोष करते हैं और वहां से वायु वेग से चलते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन, है ना। पूरे प्रसन्न मन से पूरे जोर से प्रारंभ करिए और शुरुआत ऐसी हो कि जब हनुमान जी वायु वेग से पत्थर से चट्टान से छलांग लगाते हो तो पाताल में चला जाता है वो चट्टान, वो पर्वत, है ना। शैल विशाला धसा रसाला गए रसातल धाम जी, यानी शुरुआत इतनी तेज हो, आगाज हमारा इतना तेज हो, इतनी एनर्जी के साथ हो कि आसपास लोग जान जाए कि नहीं ये आदमी कुछ करने के लिए निकला है। और इसमें फिजिक्स भी, गोस्वामी तुलसीदास जी को फिजिक्स भी आती थी, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जिस वायु वेग से ऊपर को जाता है उसी वायु वेग से पत्थर जो है वो नीचे को जाता है। उसके बाद मैनाक जी आते हैं, उनको कहते हैं कुछ देर बैठ जाइए, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, ना जी, राम काज कीन्हे से पहले मोहि कहां विश्राम जी। तो जो लक्ष्य आपने चुना है जब तक वो पूर्ण न हो जाए आपको विश्राम करना, रुकना, थकना, हारना मना है। राम काज करने से पहले, तो राम काज क्या है आपके लिए, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, द ग्रैंडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन लाइफ, द ग्रैंडेस्ट विजन ऑफ योरसेल्फ, जो आप अपने बारे में देखते हैं, ये लक्ष्य है। तो ऐसे कुछ नहीं, बहुत कुछ सफलता के सूत्र है पुस्तक में, आप अध्ययन करें, आत्मसात करें, ग्रहण करें। और मेरी कामना है कि आप सभी इस देश के पूजित नागरिक बने, ऐसे बने कि सब कोई आपकी पूजा करे, आपका अनुसरण करे, आपको आत्मसात करे, आपकी जय जयकार करे। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। पूरे विद्यालय परिवार को, प्रिंसिपल साहब को, गुरुजनों को, विद्यार्थियों को, उपस्थित अभिभावकों को और आप सभी को मैं अपनी ओर से कोटिशः आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया, मुझे सुना। और अगर आप जो कुछ सुना उसमें से अगर एक दो गुण भी अगर आप साथ करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे विश्वास है कि आदरणीय थापा साहब के नेतृत्व में आप ऐसा जरूर करेंगे, करिएगा ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।